My dear students, in previous lecture we have to completed a very important theorem. Student, theorem is the theorem of areas of similar triangles. Okay student, this is very important theorem. And student, in practice set 1.4 all the sums, all the questions are totally based on this theorem. On which theorem student? The theorem of areas of similar triangles. Student, what is this theorem? When two triangles are similar, then the ratio of areas of these two triangles is equals to the ratio of square of their corresponding sides. Okay my dear students, when two triangles are similar, मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, then the ratio of their areas is equals to the ratio of square of their corresponding sides. Okay my dear student, on the basis of this theorem we will solve all the questions of practice set 1.4. Okay my dear student, now question number 1 is the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. Then find the ratio of their areas. Student, in this question two triangles are given which are similar. मतलब इस क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्रायंगल दिया है and also given that ratio of corresponding sides of these two similar triangles is 3:5. Then we will find the ratio of their areas. बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन समझ में आई क्या? The ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो दिया है. कितना दिया है? 3:5 दिया है. Then find the ratio of their areas. Okay student, but name of the triangles are not given. So student, we can consider two similar triangles. तो हम लोग क्या करेंगे? दो सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे. आइए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो हमने क्या कंसीडर किया? हमने दो सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. स्टूडेंट, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड इट्स ratio of corresponding sides of similar triangles is given that 3:5. क्या दिया है? Ratio of corresponding sides of these two similar triangles. Student, if these two triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle PQR, then these two triangles having three pairs of corresponding sides, like as side AB its corresponding side PQ, and side BC its corresponding side QR, and side AC its corresponding side is PR. Okay my dear student, तीन पेयर है. करस्पॉन्डिंग साइड का कितना पेयर होता है? 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड. तो रेशियो दिया है, सारी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा. कोई भी एक हम लोग यहां पर लिख सकते हैं. एंड लेट AB is to PQ is given that 3:5. Okay, then find the ratio of their areas. क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ देयर एरियाज. स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC and triangle PQR are similar triangle, and to find ratio of their areas means we will find area of triangle ABC upon area of triangle PQR. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. स्टूडेंट, चाहे ऐसे आप लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है. देयर इज नो एनी डिफरेंस. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सिमिलर ट्रायंगल्स. स्टूडेंट, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their areas is equals to the ratio of
द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर corresponding sides. Student, AB and its corresponding side is PQ. Then we will write here AB square upon PQ square. अच्छा, इसको कैसे आपने लिखा? कौन सा थ्योरम यूज किया? बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसका रीजन यहां लिखना है बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। इसी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ दी होल स्क्वायर। इंडाइसिस लेसन में पढ़ा है स्टूडेंट, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इंडाइसिस लेसन में, इफ x रेज टू m अपॉन x रेज टू m अपॉन y रेज टू m, दोनों का इंडेक्स सेम है, इंडेक्स मतलब पावर, दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन y सेम पावर m। बात समझ में आई क्या? बाय दिस कॉन्सेप्ट, बाय दिस फार्मूला, दिस AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, तो दोनों को साथ में हमने लिख दिया AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर। बट स्टूडेंट, AB is to PQ means what? AB upon PQ, and AB upon PQ is given that 3:5 means student AB upon PQ is given that 3 upon 5. So substitute its value. Now area of triangle ABC upon area of triangle PQR, this is equals to AB upon PQ. AB upon PQ value is given that 3 upon 5 whole square. Okay student, now square of 3 is 9, square of 5 is 25. Therefore आंसर कैसे लिखेंगे? Therefore the ratio of areas of given similar triangles is 9:25. ओके स्टूडेंट, आंसर लिख सकते हैं क्या? आंसर कैसे लिखेंगे? Therefore the ratio of areas of गिवन सिमिलर ट्रायंगल्स इज, रेशियो कितना आ गया? 9:25. दिस इज द आंसर. ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2. सेकेंड क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, स्टूडेंट two similar triangles are given and AB is to PQ is given that 2:3, then fill in the blanks. एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, बॉक्स दिया है, वो हमको फिल करना है. स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR दे आर सिमिलर. ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and also given that AB is to PQ is given that 2:3. Student, these two triangles are similar. Then what is this? This is the ratio of their corresponding sides. यहां से देखो AB, this is AB and this is PQ. Student, AB and PQ are corresponding sides and ratio of corresponding sides is given that 2:3. तो क्या हमको इसमें फिल करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle PQR, this is equals to AB square upon box है, this is equals to 2 square upon 3 square. Okay student, this is the question. तो चलिए बॉक्स हम लोग कैसे भरेंगे? स्टूडेंट, these two triangles are similar, ABC and PQR are similar and AB is to PQ means the ratio of
corresponding sides is given that 2:3 and this is area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equals to AB square upon AB. Its corresponding side is PQ. So in this box we will fill PQ square. Okay my dear student. अरे यही तो थ्योरम है ना. कौन सी थ्योरम है? If two triangles are similar, then the ratio of their areas is equals to the ratio of square of their corresponding side. Square of their corresponding sides AB square and AB its corresponding side is PQ. So AB square upon ये बॉक्स में क्या आ जाएगा? PQ square. और AB is to PQ is given that 2:3. तो AB की जगह 2 आ गया, PQ की जगह 3 आ गया. स्क्वायर ऑफ 2 is 4 and स्क्वायर ऑफ 3 is 9. Okay my dear student, now note down this. Okay, now question number 3. If triangle ABC is similar to triangle PQR, in this question again two triangles are similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR and area of triangle ABC is given that 80. Area of triangle PQR is given that 125. Then fill in the blanks. Okay student, area of triangle triangle ABC is similar to triangle PQR. These two triangles are similar. It is given and area of triangle ABC is given that 80. जो फर्स्ट ट्रायंगल है, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रायंगल? ABC. इट्स एरिया इज गिवन दैट 80 एंड सेकेंड ट्रायंगल इज PQR एंड इट्स एरिया इज गिवन दैट 125. सेकेंड ट्रायंगल PQR है, उसका एरिया दिया है, कितना दिया है? 125. देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन इधर ब्लैंक है, यहां आपको फिल करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल का नाम लिखना है. दिस इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 125. फिर यहां पर आपको फाइंड आउट करना है देयरफॉर AB अपॉन PQ की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. Area of triangle ABC is given that 80 and area of triangle PQR is given that 125. Then we will find AB upon PQ. AB upon PQ means what we will find? The ratio of their corresponding sides means AB. तो यहां से देख रहे हैं ना, AB की corresponding साइड क्या है? PQ. ये दोनों जो है corresponding साइड्स, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. तो बात समझ में आई क्या? चलिए इधर हम लोग रफली सॉल्व करते हैं, फिर जो आएगा आंसर इधर हम लोग भरेंगे. स्टूडेंट, दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. These two triangles are similar. Then by the theorem of areas of similar triangles, we can write this area of triangle ABC upon area of triangle PQR. This is equals to AB square upon क्या हो जाएगा? PQ square. तो कुछ आंसर मिला क्या? तो यहां देखिए अपान में क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर क्या भरना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. चलिए एक यहां पर भर दिया हमने. एंड स्टूडेंट, दिस AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ होल स्क्वायर लिख सकते हैं. दोनों का स्क्वायर है. बाय द फार्मूला ऑफ इंडाइसिस लेसन इन 8th स्टैंडर्ड. ओके स्टूडेंट, अभी हमने बताया अगर कहीं x रेज टू m अपॉन y रेज टू m लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो इसको x अपॉन y रेज टू सेम इंडेक्स m. ओके माय डियर स्टूडेंट. अच्छा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को क्या हमने लिखा? AB अपॉन PQ द होल स्क्वायर. एंड इन लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. स्टूडेंट, दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन दैट कितना दिया है? 80 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसकी वैल्यू कितना दिया है? 125. अच्छा, ये कैंसल हो जाएगा. 80 एंड 125
कैंसल आउट बाय 5, 5 से कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 16, 5 1 जा 5, 3 बचा 0, 5 6 जा 30 एंड दिस 125 कैंसल आउट बाय 5 वी गेट 25। तो यहां से देखो ए बी अपान पी क्यू होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना आ गई 16 अपान 25, देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू द होल स्क्वायर वी गेट 16 अपान 25। अरे यही आई ना वैल्यू, ए बी अपान पी क्यू दी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 अपान 25। लेकिन इधर जो क्वेश्चन है हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको ए बी अपान पी क्यू चाहिए, इधर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे हम लोग हटाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स। क्या यहां पर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट इसका स्क्वायर है, जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ए बी अपान पी क्यू, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। सो स्टूडेंट ए बी अपान पी क्यू कितना आ गया 4 अपान 5, तो यहां पर कितना रख देंगे 4 अपान 5। माय डियर स्टूडेंट अंडरस्टूड ना, नाउ नोट डाउन दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, triangle LMN is similar to triangle PQR. Again in this question, two triangles are similar. Triangle LMN is similar to triangle PQR. 9 times of area of triangle PQR, this is equals to 16 times of area of triangle LMN. If QR is 20, then find MN. Okay student, now first write down given. First write down given. What are given in this question? Student, two triangles are there. Triangle LMN is similar to triangle PQR. Triangle LMN is similar to triangle PQR and 9 times of area of triangle PQR, 9 times of area of triangle PQR, this is equals to 16 times of area of triangle LMN. If QR is given that 20, then find MN. Okay student, this is the question. In this question again two triangles are similar. Triangle LMN is similar to triangle PQR and 9 times of area of triangle PQR, this is equals to 16 times of area of triangle LMN. तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PQR। दोनों का जो एरिया है ना कैसे रिलेट किया है, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN एंड QR इज गिवन दैट 20, देन फाइंड MN। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ट्रायंगल LMN, this triangle LMN is similar to triangle PQR and we know that when two triangles are similar, then the ratio of their areas, is equals to the square of, is equals to the ratio of square of their corresponding sides। तो corresponding side में हमको वही लिखना है जो हमको फाइंड आउट करना है और जो गिवन है। तो स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, MN। क्या गिवन है, QR। तो क्या आप यहां से देख पा रहे हैं, क्या यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, ये जो QR है corresponding side MN and QR are corresponding side। तो LMN ऊपर है तो इसका साइड लिखेंगे MN स्क्वायर अपान क्या लिख देंगे QR स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या। अच्छा, कौन सा थ्योरम यूज करके हमने इसको लिखा, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहां पर इसका रीजन लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल्स टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर।
अच्छा, इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 1. स्टूडेंट, दिस इज कंसीडर एज इक्वेशन 1. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट information is given this. 9 times of area of triangle PQR, this is equals to 16 times of area of triangle LMN. तो यहां पर क्या लिखेंगे, but 9 times of area of triangle PQR, this is equal to 16 times of area of triangle LMN. बात समझ में आए क्या? ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है, हमने अपने मन से नहीं लिखा. स्टूडेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. अच्छा, इक्वेशन 1 ध्यान से देखो. एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN न्यूमरेटर में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कहां पर है, डिनोमिनेटर में. तो कुछ ऐसा ही हम यहां पर रिलेशन बनाने जा रहे हैं. स्टूडेंट, दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसको हमने इसी साइड में रखा. ये जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं तो ये अपान में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसको जब इधर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 9. लेफ्ट हैंड साइड में 9. और ये देखो इनटू कितना है, 16. इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर लाओगे क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन 2. बात समझ में आई क्या? अब इक्वेशन 1 एंड 2, ऑब्जर्व इक्वेशन 1 एंड 2. स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इट्स वैल्यू इज 9 अपॉन 16. and also equation 1 gives the value of the ratio of these two triangles is equal to MN square upon QR square. तो इक्वेशन 1 और 2 से ये देखो, इसका ये दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है. तो इक्वेशन 1 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16. MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 9 अपॉन 16. तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 से क्या रिलेशन मिला हमको, दिस MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 16. 9 अपॉन 16. अच्छा, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, MN अपॉन QR होल स्क्वायर कर दूं इसका. MN का भी स्क्वायर है, QR का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को एक ही साथ में हमने लगा दिया. एंड इन दिस साइड 9 अपॉन 16. स्टूडेंट, दिस 9 अपॉन 16 इज 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर. Okay, student, understood ना? This 9 upon 16, we can write this relation 9 upon 16 as 3 upon 4 the whole square. Now, student, both the sides are square. दोनों साइड में देखो स्क्वायर है. Now, taking square roots. अब इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट्स, इसको कंप्लीट करेंगे आप सेंटेंस. टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया, कितना आ गया, MN अपॉन QR. जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर अगर रहता है तो स्क्वायर को हटा देते हैं. तो MN अपॉन QR, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब देखो क्या निकालना हमको, MN क्या गिवन है, QR की वैल्यू कितना दिया है, 20. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ QR, MN upon QR is 20. This is equal to 3 upon 4. Therefore, this MN is equal to 3 upon 4. Student, this 20 in this side in division. In this side in division, when we take this number 20 in this side, becomes in multiplication. Now this 20 cancel out by 4. 4 1 ja, 4 5 ja, and numerator is 3 into 5. 3 5 ja, 15. So we get MN is equal to 15 units. Okay, my dear student, understood now? Now note down this solution. Now question number 5.
areas of two similar triangles are 225 square centimeter, 81 square centimeters. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of the bigger triangle. Okay student, in this question again two similar triangles are given and their areas are also given. If a side of the smaller triangle is 12, जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एक साइड दिया है 12, देन फाइंड द करिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल. इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन two triangles are similar and one more important thing is there. One triangle is smaller and other triangle is bigger and their areas are given and one side of the smaller triangle is given 12 centimeter. Now we will find corresponding side of the bigger triangle. Okay student, then we have to consider let A1 and A2. A1 and A2 be the area of the two similar triangles. तो अभी हमने ट्रायंगल को ABCPQR करके कंसीडर नहीं कर रहे हैं. आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. चाहे तो दो सिमिलर ट्रायंगल आप ऐसे कंसीडर कर लो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, या हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके स्टूडेंट, तो चलिए एक बार ऐसे हम लोग कर लेते हैं. लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, and S1 and S2 be their S1 and S2 be their respective corresponding sides. Respective corresponding sides. Okay student, this consideration अंडरस्टूड ना. क्या हमने कंसीडर किया? A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल. मतलब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक का एरिया A1 कंसीडर कर लिया, दूसरे का एरिया क्या कंसीडर किया? A2 कंसीडर कर लिया. एंड स्टूडेंट S1 एंड S2 बी देयर रिस्पेक्टिव करिस्पॉन्डिंग साइड्स. दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो करिस्पॉन्डिंग साइड आएगा, एक का S1 है, दूसरे का क्या है? S2 है. नाउ स्टूडेंट गिवन दैट दोनों का एरिया दिया है. लेट A1 इज इक्वल टू गिवन दैट 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड A2 इज गिवन दैट 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, अब यहां पर ध्यान देना, स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड दिया है. अब इसमें कैन यू डिसाइड स्टूडेंट व्हिच ट्रायंगल इज स्मॉलर एंड व्हिच ट्रायंगल इज बिगर? स्टूडेंट दैट ट्रायंगल इज बिगर हुज एरिया इज A1 एंड दैट ट्रायंगल इज स्मॉलर हुज एरिया इज A2. जो ट्रायंगल बिगर है ना उसका एरिया क्या है? A1 है और उसका करिस्पॉन्डिंग साइड हमने क्या कंसीडर किया है? S1. और जो A2 है इसका साइड क्या कंसीडर किया है? S2. तो साइड किसका दिया है? यहां पर गलती हो सकती है तो यहां पर ध्यान से समझना है. इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, किसका साइड दिया है? स्मॉलर ट्रायंगल का. अब इसमें से स्मॉलर कौन होगा? ए वाला ट्रायंगल होगा. तो इसके साइड को हमने कैसे डिनोट किया है? S2. It means this S2 is given that 12 centimeter. Find the corresponding side of the bigger triangle. It means we will find the value of S1. Okay? Student, given triangles are similar triangle. Since given two triangles are similar triangles, therefore we know that the ratio of their areas is equals to
the ratio of square of their corresponding sides by theorem of areas of similar triangles by this theorem. Student, in this question two triangles are similar. दो ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं. और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बाय दिस थ्योरम, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. बट स्टूडेंट, A1 is given that 225 and A2 is given that 81 and this S1 अपॉन S2 कितना दिया है? 12. ये दोनों का स्क्वायर है तो ऐसे हमने स्क्वायर लगा दिया. अंडरस्टूड ना? नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, अब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ दी साइड्स. अच्छा, 225 का स्क्वायर रूट बताओ, क्या 15 होता है? 15 is the square root of 225. Yes, and 81 its square root is 9 and this is right hand side is S1 upon 12. इसका होल स्क्वायर है. क्या है इसका? होल स्क्वायर. और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में? S1 upon 12. S1 upon 12. Now by cross multiplication, this S1 into 9 into S1, this is equals to 12 into 15. Then S1 is equal to 12 into 15 and this 9 taken this side becomes in division. मतलब अपान में हो गया. तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. Again this 12 cancel out by 3, 1 ja 3, 4 ja. Then S1 is equal to 4 into 5. 4 into 5, 4 5 ja 20. S1 is equal to 20. तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? Therefore, the corresponding side of the bigger triangle is 12 centimeter. Okay, my dear student. Now note down this solution. फाइनल आंसर लिख लोगे ना? क्या लिखना है? Therefore, the corresponding side of the bigger triangle is 20 centimeter. Now note down this solution. Okay, student. Now question number 6. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC is 2, area of triangle DEF is equals to 1:2 and AB is equal to 4, find DE. Student, in this question two triangles, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिया है. सिमिलर ट्रायंगल इसके पहले सम में क्या डायरेक्टली हमको सिमिलर ट्रायंगल दे दिया. बट स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट गिवन, बट triangle ABC and triangle DEF, both the triangles are equilateral triangles and ratio of their areas is given that 1:2 and AB is equal to 4, then we will find DE. So student, first write down given triangle ABC and triangle DEF. These two triangles are equilateral triangles. Are equilateral triangles. ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं. एंड आल्सो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle DEF is given that 1:2. रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज गिवन दैट 1:2. मतलब जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं उनकी एरिया का रेशियो कितना दिया है? 1:2. एंड आल्सो AB इज गिवन दैट 4. AB कितना दिया है? 4 दिया है.
देन वी विल फाइंड DE। क्या फाइंड आउट करना है? DE। चलिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल in which all the sides are equal, that is the congruent. A triangle in which all the sides are equal, then that triangle is known as equilateral triangle. ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है साइड्स, इफ साइड्स are equal, then their opposite angles are equal. And student, we know that in equilateral triangle all the sides are equal, therefore their opposite angles are also equal. सीधी सी बात समझो, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका तीनों साइड इक्वल होगा। तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। इन एनी ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल। जो साइड इक्वल है ना, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होगा, और तीनों एंगल इक्वल है तो हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? अरे जब तीनों 60-60 होगा तभी तो 180 होगा। बात समझ में आई क्या? तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ABC, since triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangle। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, देन एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle E is equal to angle F। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा? ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल इक्वल होगा ना 60-60 डिग्री। ट्रायंगल DEF is also an equilateral triangle, therefore each angles are equal and each angle is 60 degree, so each angle is equal to 60 degree. Let this is equation 1। अब आपने ऐसा लिख तो दिया, रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखना है? मेजर ऑफ, क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रीजन लिखा? मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसका हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। ओके स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, पहले से दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं दिया है, इक्विलेटरल दिया। अब हम इसको सिमिलर बनाएंगे, इसको सिमिलर हम लोग बनाएंगे। स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल ए बताओ कितना? 60 डिग्री। क्या एंगल D के इक्वल होगा? यस, ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E होगा ना। इसका भी हर एक एंगल 60 और इसका भी हर एक एंगल 60, तो हमको सिर्फ ए टेस्ट की जरूरत है, तो हमने सिर्फ 2 ही पेयर ऑफ एंगल्स लिखा है। तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? ईच एंगल इज 60 डिग्री। स्टूडेंट, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बात समझ में आई क्या? इफ टू पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if two pairs of corresponding angles are congruent, then the triangles are similar by the test of similarity, by AA test of similarity. And student, ratio of their areas are given। दोनों का रेशियो, किसका रेशियो? एरिया का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 1:2। एंड स्टूडेंट, वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स, लेकिन हमको वही करिस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है जिसकी हमको जरूरत है। जरूरत किसकी है, D निकालना है, AB दिया है, तो आप यहां से देख रहे हैं AB इसकी करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्यों आपने ऐसा लिख दिया स्टूडेंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of square of their corresponding sides by the ratio of, by the theorem of areas of similar triangles। रीजन समझ में आया? ओके, नाउ स्टूडेंट सी इन गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is to area of triangle DEF is equal to given that 1:2। 1:2 means क्या, 1/2। तो क्या इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/2। दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। AB स्क्वायर अपॉन क्या, DE स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा दूं, कोई डाउट नहीं ना, वेरी गुड। AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो एक ही साथ में स्क्वायर लगा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स, चलिए स्क्वायर रूट लेते हैं। अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। 2 का बताओ, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखेंगे, √2। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हट गया तो कितना आ गया, AB अपॉन DE। निकालना क्या है, वी विल फाइंड D, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DE इंटू 1, दिस इज इक्वल टू AB इंटू √2। But student AB is given that 4. Now substitute the value of AB is 4, DE into 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, DE। AB की वैल्यू कितना, 4 √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ DE। ओके माय डियर, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.4। okay my dear student, but this question is given that in activity form। student activity form क्या होता है, कुछ बॉक्स दिया रहता है, मतलब सॉल्यूशन का कुछ स्टेप मिस कर दिया होता है और बॉक्स रहता है, वो बॉक्स हमको फिल करना होता है। तो आइए मैं इसको आपको पूरा इसको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी आप एक्टिविटी टाइप का जो बॉक्स है उसको आप अपने आप से भर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट इन दिस फिगर मीन्स इन दिस डायग्राम PQ इज पैरेलल टू DE। गिवन हमने लिखा है PQ इज पैरेलल टू DE। स्टूडेंट दिस PQ इज पैरेलल टू DE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF कहाँ है, PQF स्टूडेंट दिस ट्रायंगल, ये देखो जो ऑरेंज कलर से बना रहा हूं, दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQF। इसका एरिया दिया है, कितना दिया है, 20 यूनिट्स एंड PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP। स्टूडेंट दिस रिलेशन इज गिवन, PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP। PF दिस सेगमेंट इज PF ट्वाइस ऑफ DP, मतलब DP का डबल है, क्या डबल है, PF है। क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आपको डिफरेंट कलर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या फाइंड आउट करना है, ये यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना,
क्वाड्रिलेटरल DPQE, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल DEF दिखा है क्या? ट्रायंगल DEF आपको दिख रहा है क्या? इसका एरिया, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिख रहा है क्या? ये वाला ट्रायंगल DEF। अच्छा, इसको अलग कलर से मैं बना दे रहा हूं। दिस इज येलो कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं ना? कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल DEF। इसमें से ये ऑरेंज कलर का जो ट्रायंगल है PQF माइनस कर देंगे, देन स्टूडेंट वी गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक एक स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आते जाएगा। यहां पर देखो क्या दिया है, PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP। PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DP। तो इसमें हमने कंसीडर कर लिया लेट DP इज इक्वल टू X। DP को क्या कंसीडर कर लिया? X कंसीडर कर लिया। देयरफॉर DP इज इक्वल टू X, देयरफॉर PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ट्वाइस ऑफ X। अरे PF इज इक्वल टू कितना है? ट्वाइस ऑफ DP, और इस DP को हमने क्या कंसीडर किया? X। देयरफॉर PF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ X, इट मींस 2X। अच्छा अब बताओ यहां से DF, अगर मैं पूछूं ये DF कितना हो जाएगा? DP हमने X कंसीडर किया तो PF कितना आ गया? 2X। तो पूरा DF कितना हो जाएगा? DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DP प्लस PF। देख रहे हैं ना, डायग्राम से देख पा रहे हैं क्या स्टूडेंट? दिस DF इज इक्वल टू व्हाट? DP प्लस PF। DP इज X एंड PF इज 2X। अच्छा क्यों आपने प्लस किया? बिकॉज ऑफ D डैश P डैश F मीन्स दे आर कोलिनियर। Therefore DF is equal to DP, DP is X and PF is 2X, therefore DF is equal to 3X। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। DF is equal to 3X and PF is equal to 2X। Okay student, now we have to consider two triangles। अब यहां पर हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQF, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। नाउ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? DEF एंड ट्रायंगल PQF। स्टूडेंट दीज टू सेगमेंट्स आर गिवन दैट पैरेलल, PQ is parallel to DE and this one consider as a transversal, then this angle is equal to this angle। Understood now? If a transversal intersect two parallel lines, then their corresponding angles are equal। Student, this PQ is parallel to DE and this is considered as a transversal, therefore this angle is equal to this angle। corresponding angles, they are corresponding angles। and student this angle is in triangle DEF। अच्छा इसका आप नाम बता दो, एंगल का नाम बताओ। एंगल EDF is congruent to this angle is equal to this and name of this angle is QPF। एंगल QPF क्यों इक्वल है? करिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके स्टूडेंट, इक्वल क्यों हुआ दोनों एंगल? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड स्टूडेंट यू सी दिस एंगल F, ध्यान से देखो, दिस एंगल F is a angle which is in both the triangles, it means angle F is common। एंगल F, ये देखो PQF में भी एंगल F है, DEF में भी एंगल F है, therefore एंगल F is congruent to एंगल F। यहां पर क्या लिखेंगे रीजन? व्हाट इज इट्स रीजन? कॉमन एंगल। ओके स्टूडेंट, therefore if two pairs of corresponding angles are congruent, then we can say both the triangles are similar। therefore triangle, कौन सा ट्रायंगल? DEF
is similar to triangle PQF, is similar to triangle PQF. कौन से टेस्ट से? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. Okay student, and we know that if two triangles are similar, then the ratio of their areas, then the ratio of their areas is equals to the ratio of their corresponding, the ratio of square of their corresponding sides. Okay student, now area of triangle DEF, area of triangle DEF upon area of triangle PQF. यही ना, यही दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ किया. ट्रायंगल DEF is similar to triangle PQF. If two triangles are similar, then the ratio of their areas is equals to the ratio of square of their corresponding side. DEF, तो इसमें साइड हमने ले लिया DF स्क्वायर अपॉन DF का करिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बताओ? ये DF करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PF. DF स्क्वायर अपॉन PF स्क्वायर. क्या इसका रीजन लिखोगे? बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके स्टूडेंट, नाउ DF स्क्वायर, DF देखो यहां पर हमने निकाला है. DF इज इक्वल टू कितना निकाला है? 3x. तो यहां पर मैं क्या रख दूं? 3x अपॉन क्या लिखा है? PF. एंड स्टूडेंट PF इज इक्वल टू 2x. तो यहां पर क्या रख दूं? 2x. अच्छा, होल स्क्वायर लगा दिया तो x कैंसिल हो गया. कितना आ गया? 9/4. ओके स्टूडेंट, अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखो, हमको निकालना क्या है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. अच्छा, आपको समझ में आ रहा है क्या? ये वाला ट्रायंगल, येलो कलर का ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल DEF. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF minus area of triangle PQF, we get the area of this quadrilateral. Understood? Now area of triangle DEF, area of triangle DEF minus area of triangle PQF upon area of triangle. कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं? डिविडेंडो पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. अच्छा, एक बार डिविडेंडो देखो, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. कैसे यूज करते हैं डिविडेंडो? कैसे यूज करते हैं? A माइनस बी अपॉन बी, C माइनस D अपॉन D. याद आया क्या? दिस इज द डिविडेंडो. ए साइड में भी वही लगाना है, 9 - 4 अपॉन 4. यहां इसका रीजन क्या लिखोगे? बाय डिविडेंडो. ओके स्टूडेंट, कंपोनेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं. अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन बी मीन्स न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, दोनों साइड में सेम. प्लस किया तो कंपोनेंडो, माइनस किया तो डिविडेंडो. तो यहां पर हमको क्या करने की जरूरत है? माइनस करने की जरूरत है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF माइनस क्या करना है? PQF. बचेगा क्या? एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. अच्छा स्टूडेंट, इधर मैं रफ कर रहा हूं, अब यहां आप इसको नोट डाउन कर लेना. ओके स्टूडेंट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE. ये माइनस करने पर समझ में आ रहा है ना? ये देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें से छोटा वाला ट्रायंगल निकाल दिया तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया. इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQE. एंड स्टूडेंट, डिनोमिनेटर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF and area of triangle PQF is given that 20. So its denominator will be 20. This is equals to 9 minus 4 is 5 upon 4. Okay. Now area of triangle DPQE, this is equals to 5 upon 4. And student, this is in division. This 20 in left hand side in division, when we take this 20 in this side becomes in multiplication.
and student this 20 cancel out by 4, 4 1 जा 4, 5 जा 5 5 जा 25. Student, this is the area of quadrilateral DPQE is 25. 25 क्या यूनिट जो गिवन है उसमें क्या दिया, एरिया ट्रायंगल PQF 20 यूनिट्स, तो आप भी आंसर में लिख दो 25 यूनिट्स इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना? तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट कर लिया. अब इसके बाद प्रॉब्लम सेट है. प्रॉब्लम सेट आप ट्राई करते रहो, जो उसमें थोड़ा हार्ड सम है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा. ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू.